Hello students, in today's lecture number 3 on wave optics for class 12, we shall have discussion on the derivation of laws of reflection and laws of refraction on the basis of wave theory. Wave theory, all of you know, it was given by Huygens. Huygens' wave theory is able to explain the laws of reflection. It is also able to explain the laws of refraction. So here we shall derive the laws of reflection using wave theory, and also using wave theory we shall derive laws of refraction. So first we derive लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. एग्जाम में प्रश्न आता है डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग वेव थ्योरी, या फिर कहेगा यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, या फिर कहेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. सो फॉर दिस टू डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आप जानते हैं दो लॉज होते हैं. नंबर वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. And number two, second law of reflection is the incident ray, normal and reflected ray all lie in the same plane. These are the two laws of reflection of light. These two laws can be derived using Huygens wave theory. So to derive these two laws, we consider a plane wave front AV. AV एक plane wave front हमें consider करना होगा. We all know that wave front is nothing but the locus of points having same phase, or it is a surface of constant phase. Plane wave front means if light rays are coming parallel to each other, then the wave front will remain parallel. Plane wave front will be a plane wave front when the distance of the source, whether it is a point source or it is a slit source, whatever is the type of source, whatever is the nature of source, if the source is at a very large distance, then we see only a small portion of the spherical or cylindrical wavefront, and the small portion of cylindrical or spherical wavefront is known as plane wavefront. So if we incident plane wavefront AV on plane reflecting surface M1 M2. So first consider plane reflecting surface. Consider that this is the plane reflecting surface M1 M2, okay, and the lower side of this surface is polished surface, so it will behave like a mirror, plane mirror. So M1 M2, you can say that it is a plane mirror or it is a plane reflecting surface. Clear? Incident rays are normal to the wavefront AV. So first we send two parallel rays like this. This is first light ray which is incident on this reflecting surface, and this one is the second light ray. Clear? This one is the second light ray. Both the rays are parallel to each other. Both the light rays are parallel to each other. These two light rays are coming from any source of light which is at a very large distance. So the light rays will come parallel to each other. You may consider like this. And this is what? This will be the normal. This direction. If I draw it with using pen, then this is the normal. This is the normal. This is the normal. Okay. This is the normal. This is the wavefront, not normal. This is the wavefront. This is the wavefront, which is in normal direction. You can say like that. AB is known as wavefront, and this wavefront is a plane wavefront which is perpendicular to the rays of light. हम जानते हैं कि वेव फ्रंट हमेशा रेज ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होता है. So these two light rays are coming from a distant source. So a small portion of the spherical or cylindrical wave front will be a plane wave front. जब distance source होता है
तो सोर्स का नेचर मायने नहीं रखता, हम लाइट रेज को पैरेलल कंसीडर करते हैं, और पैरेलल लाइट रेज के केस में जो वेव फ्रंट है वो कैसा आता है, प्लेन वेव फ्रंट आता है. सो दिस इज द वेव फ्रंट. क्लियर. रेज ऑफ लाइट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है. सो दिस इज द वेव फ्रंट. क्लियर. अब इफ आई टॉक अबाउट दिस लाइट रे, if I talk about this light ray, ray number 1, right, and assume that this is ray number 2. If I talk about this ray number 1, then for ray 1, this would be the normal. This would be the normal for ray 1, and this ray 1 is making an angle I with the normal, is making an angle I with the normal. Okay. This is the normal to this light ray. Okay, this is the normal to this light ray. So this is the angle of incidence. This is the angle of incidence. Okay, then if this angle is I, then what would be the angle of reflection? We shall discuss it. Similarly, जैसे हमने यहाँ पर ये नॉर्मल कंसीडर किया, सिमिलरली रे 2 के लिए भी हम ये नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फॉर रे 2, एंड दिस फॉर रे 2 दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल फॉर रे नंबर 2, फॉर रे नंबर 2 दिस इज द नॉर्मल, राइट, दिस इज द नॉर्मल फॉर रे नंबर 2. सो नाउ यू सी फ्रॉम दिस पॉइंट, this is the normal for ray number 2, and this is the normal for ray number 1. Ray number 1 makes an angle I with the normal, and similarly you may consider that this ray number 2 also makes an angle I with the normal too. No need to represent it. Okay, so we consider this angle I, which is angle of incidence, Okay, now what will happen? This light ray number 1 will get reflected from this surface, from this point. इस पॉइंट से इस लाइट रे का क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे इस तरीके से इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में ये लाइट रे जाएगी, इस डायरेक्शन में ये लाइट रे जाएगी. सो दिस इज 1 dash, this is 1 dash. 1 dash is the reflected light which is obtained by incidenting light ray number 1 on this plane reflecting surface. Plane reflecting surface M1 M2 पर light ray 1 को इंसिडेंट करने से जो रिफ्लेक्टेड रे आपको मिल रही है वो कौन सी है, दिस इज द, ये डॉटेड बनाओ चाहे यहाँ सॉलिड बनाओ एक ही बात है, आप कंसीडर कर सकते हो सॉलिड लाइन. ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए. तो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. ओके, नाउ यू सी दिस इज द नॉर्मल, AB is the wave front, and wave front is also in the direction of normal. Wave front is also in the direction of normal. Clear? Wave front is also in the direction of normal. This normal is the normal to this plane surface. प्लेन सरफेस के लिए ये नॉर्मल है, और इसके साथ ये इंसिडेंट लाइट आई एंगल बनाती है, और ये भी एक तरह से नॉर्मल हुआ. ये जो वेव फ्रंट ए भी है ये भी क्या हुआ, एक तरह से नॉर्मल हुआ. और नॉर्मल के साथ इस नॉर्मल के साथ ये जो एंगल होगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल क्या होगा, इफ दिस एंगल इज आई, तो यहां से यहां तक का जो टोटल एंगल है ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा. ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा. समझना जरूरी है इस बात को. देखिए, मैंने कहा कि ये नॉर्मल था, जो इस प्लेन सरफेस के नॉर्मल था, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया आई. उसके बाद में ये आपका वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट का हो गया. आप एबी को क्या नाम देंगे, यहां लिख सकते हैं एबी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. कैसा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. ठीक है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट एबी. तो ये देखिए आई एंगल बनाया इस नॉर्मल के साथ, और ये जो एबी वेव फ्रंट है ये भी तो एक नॉर्मल है. तो इस मिरर की सरफेस और इस नॉर्मल के बीच भी एंगल क्या होगा, इस वेव फ्रंट के बीच भी एंगल क्या होगा, आई होगा. ठीक है,
चलिए ये लाइट रे इधर चली गई, ये लाइट रे इधर चली गई रिफ्लेक्ट होकर के। सिमिलरली रे नंबर 2 का क्या होगा, यहाँ पर रे नंबर 2 भी यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी, इस तरीके से इस तरफ चली जाएगी, इस तरीके से इस तरफ चली जाएगी। ये रे नंबर 2 यानी 2 डैश बनेगा, ये क्या मिलेगा, 2 डैश मिलेगा, ठीक है। और ये एंगल मान लेता हूं, ये एंगल आर है, ये एंगल क्या है, आर है। तो इन ये जो रिफ्लेक्टेड रेज मिली हैं 1 डैश 2 डैश, इनके लिए वेव फ्रंट कौन सा होगा, इनके लिए यदि मैं वेव फ्रंट की बात करूं 1 डैश 2 डैश के लिए जो वेव फ्रंट होगा वो ये वाला होगा। 1 डैश 2 डैश के लिए वेव फ्रंट ये वाला होगा। दिस वुड बी द वेव फ्रंट, ब्लू पेन से इसको हम इंडिकेट करें। दिस वुड बी द वेव फ्रंट, दिस वुड बी द वेव फ्रंट फॉर 1 डैश 2 डैश, एंड दिस वुड बी ए डैश एंड दिस इज वी डैश। ओके, तो यदि ये एंगल आर है, जैसे ये एंगल आई था तो ये आई हो गया, वैसे ही ये एंगल आर है तो ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल है ये वेव फ्रंट है और ये रे ऑफ लाइट है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ये वेव फ्रंट है, ये रे ऑफ लाइट है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। ये हमने बना लिया क्या, दो लाइट रेज को हमने इंसिडेंट किया और उसके बाद में ये रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखिए जितनी देर में ये रे ऑफ लाइट नंबर 1, ये रे ऑफ लाइट 1 जितनी देर में बी से ए डैश पर पहुंचती है, उतने ही समय में रे ऑफ लाइट नंबर 2 ए से कहां पहुंचेगी, बी डैश पर पहुंचेगी। ए से कहां पहुंचेगी, बी डैश पर पहुंचेगी। दोनों ही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही हैं। रे 1 भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है, रे 2 भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है। तो इन टाइम टी देखिए, एज बोथ द रेज, यहां लिख सकते हैं आप, एज both rays of light are traveling with speed of light c, therefore the distance covered by these two rays after time t, देखिए जो डिस्टेंस कवर की रे 1 ने V से A डैश, ठीक है, और ये बराबर होगा A डैश से, B से A डैश बराबर होगा A से B डैश, B से A डैश बराबर होगा A से B डैश के। यूजिंग ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल का यूज किया हमने, बी ए बी डैश, बी ए बी डैश, बी ए बी डैश एंड ट्राइंगल बी डैश ए डैश बी, बी डैश ए डैश बी। देखिए बी ए बी डैश, ये वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, और एक ट्राइंगल बी डैश ए डैश बी। इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम बात करें आफ्टर टाइम टी, जो डिस्टेंस, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं रे 1 जितने टाइम में, यदि टी टाइम में रे 1 वी से ए डैश पर पहुंचती है, तो उतने ही समय में रे 2 ए से बी डैश पर पहुंचेगी, क्योंकि जब रे 2 यहां पर होगी तो उस समय रे 1 यहां पर है, तो यहां से रे 1 का रिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये इस तरफ चली जाएगी। यहां से
ये रे 2 इस तरफ जाएगी ए से बी डैश, यानी बी से ए डैश जाने में जितना समय लगेगा रे 1 को, सेम टाइम रे 2 को ए से बी डैश तक आने में लगेगा। यानी बी से ए डैश का जो डिस्टेंस है वो ए से बी डैश की डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, और ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएंगी? ये दोनों ही बराबर हो जाएंगी डिस्टेंस क्या? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? c, और टाइम क्या है? t। तो बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश बराबर आ जाएगा सी टी के। ठीक है, अब देखिए जो एंगल बी ए बी डैश है और जो एंगल बी डैश ए डैश बी है, ये एंगल 90 डिग्री है। देखिए जरा, बी ए बी डैश ये वाला एंगल 90 डिग्री है, बी डैश ए डैश बी ये वाला एंगल भी क्या है? 90 डिग्री है। यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश। एंगल ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और एंगल ए डैश को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री के बराबर हैं। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब देखिए ये डिस्टेंस बी ए डैश बराबर है ए बी डैश के, और ये एंगल भी सेम है, तो उस केस में जो ये ट्राइंगल होंगे, कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल बी ए बी डैश और ट्राइंगल बी डैश ए डैश बी, ये कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल बी ए बी डैश कॉन्ग्रुएंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ठीक है, ये ट्राइंगल बी डैश ए डैश बी के बराबर होगा। ये दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे, और जब ये दोनों ट्राइंगल बराबर होंगे, जब ये दोनों ट्राइंगल सेम हैं, तो देखिए एंगल ए बी बी डैश यानी ये वाला एंगल बराबर होगा एंगल ए डैश बी के, यानी इस एंगल के। ठीक है, तो जब ऐसा है तो एंगल ए बी डैश बराबर होगा किसके? एंगल ए डैश बी के। और एंगल ए बी डैश क्या है? ए बी डैश आई है, और ए डैश बी क्या है? आर है। यानी यहां से क्या आ गया? आई इज इक्वल टू आर आ गया। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिल जाता है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ reflection. So using wave theory we derived first law of reflection, and from this geometry, from this diagram, it is very much clear that the incident rays, normal and reflected rays, all these three, incident rays, normal and reflected rays, all these three lie in the same plane. Also यहाँ लिख देंगे सीधे, also from above diagram it is clear that the incident ray, it is clear that the incident rays, reflected rays and normals all lie in the same plane. This is second law of reflection of light. So this is how we can derive the laws of reflection of light using wave theory of light. Using Huygens wave theory, in this way we can derive the laws of reflection. उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे laws of refraction on the basis of wave theory.
वेव थ्योरी के आधार पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम डिराइव करना चाहेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव करना चाहेंगे। जैसे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा क्या था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सिमिलरली देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आप जानते होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेज दैट the incident ray, refracted ray and normal all lie in the same plane। तो इसकी बात करेंगे। So for this we consider again a plane wave front AV incident on the plane refracting surface। कौन सी surface है, refracting, यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। पहले क्या था, लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रही थी और वापस उसी मीडियम में जा रही थी, लेकिन अब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। इंसिडेंट रेज आर नॉर्मल टू द वेव फ्रंट एवी। ठीक है। सो फॉर दिस वी कंसिडर ए मीडियम, फॉर एग्जाम्पल ए ग्लास मीडियम यू मे कंसिडर। suppose this is the glass slab, okay, this is the glass slab, this is glass medium, glass, and the refractive index mu g, आप जानते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं। और ये यहाँ पर है एयर, यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और यहाँ पर मीडियम है ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। ये ग्लास जो है एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर मीडियम होगा, और एयर कैसा मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा ग्लास के रेस्पेक्ट में। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, वही दो लाइट रेज इंसिडेंट करता हूँ, सेम टू लाइट रेज मैं इंसिडेंट करता हूँ। चलिए इंसिडेंट करते हैं दो लाइट रेज को। इस तरीके से एक लाइट रे आई, ये इंसिडेंट हुई, रे नंबर 1 नाम दे देता हूं। ठीक है। इस तरीके से ये दूसरी लाइट रे आई, रे नंबर 2 नाम दे देता हूं इसे। अब क्या होगा, ये रेज ऑफ लाइट इस सेकंड मीडियम में एंटर करेंगे, है या नहीं। सबसे पहले तो देख लें कि नॉर्मल क्या है इनका। नॉर्मल, ये जो है नॉर्मल हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्मल, नॉर्मल हो गया ये। ऐसे ही ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाती है लाइट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। ठीक है। और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, जितना ये एंगल बनाएगी ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पर वेव फ्रंट कैसा होगा, लाइट रेज कैसी हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, तो वेव फ्रंट यहाँ भी कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ये हो गया वेव फ्रंट। ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी, इसको ए नाम दे देता हूँ। दिस ए बी इज ए प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन में ये देखिए, ए बी था इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ए बी कैसा था, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ये लिखा हमने। और जो ए डैश बी डैश है, इसका क्या नाम होगा, ये भी नोट कर लेना। ए डैश बी डैश का नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश होगा क्या, रिफ्लेक्टेड। इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ये आफ्टर रिफ्लेक्शन मिल रहा है, इसलिए इसको रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। वैसे ही हम यहां पर लिख देते हैं, ये ए बी क्या है, व्हाट इज ए बी, ए बी इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ए बी। अब देखिए, यदि ये रे नंबर 1 नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाती है, तो ये जो वेव फ्रंट होगा, ये इस सरफेस के साथ यहां भी कितना एंगल बनाएगा, आई एंगल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेव फ्रंट भी क्या होता है, नॉर्मल होता है, किसका, रेज ऑफ लाइट का। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो
रिफ्रैक्शन होगा, रे 1 जो है इस तरीके से अंदर एंटर करेगी और रे 2 भी यहाँ पर इस तरीके से एंटर करेगी। ठीक है, यानी ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयरर से डेंसर आ रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होंगी और ये एंगल आप जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। सिमिलरली ये एंगल भी क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ये एंगल भी क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। और जो ये ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो वैसे ही अब जो आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको वेव फ्रंट मिलेगा वो कौन सा होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो वेव फ्रंट मिलेगा वो ये होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये वेव फ्रंट आपको मिलेगा और इसको मैं नाम दे देता हूं ये ए डैश और ये बी डैश। ए डैश बी डैश, व्हाट इज दिस ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज, ए डैश बी डैश इज रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, हम वही रिफ्रैक्शन जैसा ही डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ये एंगल आर है और ये वेव फ्रंट इनका नॉर्मल है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो यदि हम ट्राइंगल आप देख पा रहे हो तो दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं। एक ट्राइंगल है ए बी ए डैश और एक ट्राइंगल है बी डैश ए डैश बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैं इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज करता हूं, यूजिंग ट्राइंगल ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश। तो यहाँ पर साइन आई निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कौन होगा इसमें, इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, ए डैश परपेंडिकुलर होगा, ए डैश क्या होगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, दिस ए डैश बी, ए डैश बी क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए डैश बी, ए डैश बी। ठीक है, ए डैश बी, क्लियर, ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं इसको मैं। ठीक है, सिमिलरली using triangle B A dash B dash, अब B A dash B dash, ये B A dash B dash, B A dash B dash, B A dash B dash, ये ट्राइंगल है, इसमें मैं साइन R निकाल लेता हूँ। ठीक है, साइन R निकाल लेता हूँ, तो साइन R अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब बी वी डैश, बी वी डैश, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया ए डैश बी। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर यदि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहूं, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो निकालना है हमें। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताता है, स्नेल्स लॉ के बारे में बताता है। तो यहां पर यदि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, देखिए यहां पर मैं क्या, चलिए पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। पहले ऐसे कर लीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, बी में राइट क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर है ए डैश अपॉन ए डैश बी, नीचे आएगा बी बी डैश अपॉन ए डैश बी। सॉल्व करेंगे, ए डैश बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर
ये वैल्यू आ जाएगी ए ए डैश अपॉन वी वी डैश, इक्वेशन नंबर 3। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ए ए डैश एंड व्हाट इज बी वी डैश। ठीक है, व्हाट इज ए ए डैश एंड व्हाट इज बी वी डैश। तो ए ए डैश, ये जो डिस्टेंस है ए ए डैश, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। देखिए, जितने टाइम में लाइट रे नंबर 2 ए से ए डैश पर पहुंचेगी, उतने ही टाइम में लाइट रे बी से बी डैश पर पहुंचेगी, उतने ही टाइम में लाइट रे बी से बी डैश पर पहुंचेगी। देखिए यहां पर डेंसर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, मान लेता हूं इन डेंसर मीडियम C2 इज स्पीड ऑफ लाइट। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? C2 है। और जहां रेयरर मीडियम है, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट C1 है, C1 है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और ये भी आप जानते हैं कि रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा, डेंसर में कम होगा। ठीक है, C1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम एंड C2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। ठीक है यहां तक। अब देखिए, ये स्पीड ऑफ लाइट है, तो टी टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी, जो ये डिस्टेंस होगी कौन सी? ए ए डैश। ए ए डैश का क्या होना है? आफ्टर टाइम टी, किसी टाइम टी के बाद ये जो डिस्टेंस होगी ए ए डैश, ये किसके बराबर हो जाएगी? ए ए डैश बराबर हो जाएगी आपका C1 इंटू टी के बराबर हो जाएगी। भाई ये C1 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होगी, ऐसे ही C2 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं होगी। ये स्पीड ऑफ लाइट है इन ग्लास, इन ग्लास। ठीक है, ध्यान रखिए, ये स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, तो ऑब्वियसली ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर नहीं है। ठीक है, ये कुछ और होगा उसके अलावा, क्योंकि मीडियम में अलग होती है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, वैक्यूम के अंदर होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ हम वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को C2 मान रहे हैं और एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को C1 मान रहे हैं। तो देखिए, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, रे वन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? वी वी डैश, एंड रे 2 ट्रेवल्स ए डिस्टेंस कितना? ए ए डैश। ये ट्रेवल करती है, ये बराबर तो होंगी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मैंने शायद थोड़ी देर पहले बराबर कह दिया था। बराबर नहीं होंगी क्योंकि यहाँ का मीडियम अलग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो ए ए डैश बराबर बी बी डैश तो नहीं होगा, कुछ और ही होगा। अब टाइम T1 के बाद, सॉरी टाइम टी के बाद रे 1 ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बी से वी डैश ट्रेवल किया। किस स्पीड से? C2 स्पीड से। तो बी वी डैश किसके बराबर हो जाएगा? बी वी डैश बराबर हो जाएगा C2 इंटू टी, हो जाएगा या नहीं? भाई ये रे नंबर कौन सी है? ये रे नंबर है 1 डैश और ये रे है 2 डैश। ठीक है, तो बी वी डैश कितना हुआ? ये बी वी डैश डिस्टेंस हुआ, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। किस स्पीड से आ रही है? C2 स्पीड से हमने मान लिया, और टी टाइम के बाद निकाल रहे हैं तो C2 इंटू टी हो गया। सिमिलरली ए ए डैश क्या हो जाएगा? ए ए डैश की मैं बात करूं तो ए ए डैश बराबर C1 इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है यहाँ पर? C1 है एयर के अंदर, और कितने टाइम के बाद? टी टाइम के बाद। तो ए डैश बराबर C1 इंटू टी हो जाएगा। तो इस ए डैश और वी वी डैश की वैल्यू इक्वेशन देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए पहले, बी वी डैश इज इक्वल टू C2 इंटू टी एंड ए डैश इज इक्वल टू C1 इंटू टी। देयरफॉर इक्वेशन 3 में बी री रिटन एज, इक्वेशन 3 को अब क्या लिखा जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए डैश मतलब C1 टी एंड वी वी डैश मतलब C2 इंटू टी। अब टी से टी कैंसिल हो गया,
तो ये क्या आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब ये C1 अपॉन C2 क्या होता है, इसको भी जरा चेक करना पड़ेगा। C1 अपॉन C2 क्या होगा, देखिए मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने जब पढ़ाया था, आपको बताया था, तो बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का रेशो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। वहीं यदि आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू, जैसे 2 1 की बात कर रहे हो तो μ2 अपॉन μ1 होता है। और μ2 को मैंने लिखा था दिस C अपॉन V2, और इसको लिखा था C अपॉन V1, राइट। इसके बाद में ये आ गया V1 अपॉन V2, आ गया था या नहीं। हमने V1 V2 को C1 C2 से रिप्रेजेंट किया है, तो यानी C1 अपॉन C2 म्यू के बराबर हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाएगा, है या नहीं। हमने V1 V2 की जगह क्या लिया है, C1 C2 लिया है, ठीक है। तो C1 अपॉन C2 किसके बराबर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो गया। सिंस यहां लिख सकते हैं, सिंस C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू म्यू होता है, देयरफॉर म्यू मतलब म्यू जी अपॉन म्यू ए होगा, ठीक है। ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर, जो इक्वेशन आपकी कौन सी है, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 4, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये जो आया, व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है। also known as first law of refraction। तो इस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम डिराइव कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रॉम above ज्योमेट्री लिख सकते हैं आप, ऑल्सो फ्रॉम above ज्योमेट्री या डायग्राम कुछ भी लिखिए, ऑल्सो फ्रॉम above ज्योमेट्री it is clear that the incident rays, right, refracted rays and normal all lie in the same plane। This is second law of refraction of light। So in this way we can derive what, both the laws of refraction of light using Huygens wave theory। Huygens wave theory का यूज करके हमने रिफ्रैक्शन के भी दोनों लॉज को डिराइव कर लिया। स्नेल्स लॉ डिराइव किया, और उसके बाद में हमने इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये भी लिख दिया इस ज्योमेट्री से, इस डायग्राम से। तो इस तरीके से हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिराइव कर सकते हैं। आज हमने अभी तक ये जान लिया है कि कैसे हाइगेन वेव थ्योरी की हेल्प से, हाइगेन प्रिंसिपल की हेल्प से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगा या नहीं आएगा, स्पीड में क्या चेंज आएगा, इनकी बात करेंगे। इसके अलावा जब हम किन्हीं पैरेलल लाइट रेज को प्रिज्म के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उसका इमर्जेंट वेव फ्रंट कैसा होगा, जब हम पैरेलल लाइट रेज को एक कॉन्वेक्स लेंस पर या कॉनकेव लेंस पर इंसिडेंट करते हैं तो इमर्जेंट वेव फ्रंट कैसा होगा, जब हम मिरर पर इंसिडेंट करेंगे तो इमर्जेंट वेव फ्रंट कैसा होगा, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे।
और उसके बाद में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की भी बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।